Welcome back friends. Today we will be starting with practice set 4.4 which is purely based on theorem on equal ratios. Let us see what is theorem on equal ratios. Okay, so as the name itself says, theorem on equal ratios, that the ratios will be equal means there will be two ratios which are equal. तो देखो क्या होगा. For example, let us say okay, two or more than two ratios will be equal. For example, if you have x upon y equal to a upon b. Okay, हमारे पास ये x upon y is a upon b. Then both these ratios will be equal to x plus a upon y plus b. बोलेंगे कि सर ऐसे कैसा, ऐसा होता है? हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा भी हो सकता है x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होता है. अच्छा, ऐसे ही सिर्फ ऐसा नहीं, a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस वाई. whatever you do to the numerator, same thing you have to do it with the denominator. ऐसा होता है. तुम बोलोगे कि सर प्रूव करके दिखाओ. चलो देखो प्रूव करके देखते हैं. सपोज यू टेक टू रेशियोज 2/3 एंड 4/6. अब ये दोनों इक्वल है ना. देखो 4/6 को कट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 मिलेगा, राइट? now see, if we add them, what are we going to get? 6/9. देखो ना, इनको ऐड किया 2 + 4 6 है ना. अगर इसको कट करोगे तो फिर से क्या आएगा? 2/3 आएगा ना. देखो इसको कट करोगे तो क्या आने वाला है तुमको? 2/3. मतलब ये इक्वल है. अभी माइनस करके देखेंगे. 2 - 4 कितना आएगा? 2 - 4 करेंगे तो यू गेट -2 एंड 3 - 6 करेंगे तो मिलेगा -3. अगेन माइनस माइनस कट, अगेन यू आर गेटिंग 2/3. उल्टा करेंगे 4 - 2, अगेन यू आर गेटिंग 2. 6 - 3, अगेन देखो 3. कुछ भी कर लो, 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 है. इसको भी कट करोगे तो all the ratios will be same. So this is what is theorem on equal ratios. Now is it only for two ratios? No, it can be for any number of ratios. For example, if we take x upon y equal to a upon b equal to p upon q equal to r upon s. ठीक है, चार ratios है which are equal. What is important? The ratios being equal is very important. ठीक है. Now these ratios are equal. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि all these ratios is equal to x plus a. This is a. I'm sorry. X plus a plus p plus r upon y plus b plus q plus s. Correct? Addition of all these. Also they are equal to. देखो अगर हम ऐसा कर सकते हैं x minus a plus p minus r, तो नीचे भी क्या आएगा बच्चों? ऐसे ही आएगा. क्या? y minus b plus q minus s. Okay, so whatever you do to the numerator, same thing is done to the denominator also. अभी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेंगे. See, all these ratios will be also equal to what? देखो अगर हमने ऐसा किया 2x plus 3a minus 5p plus r अपन, तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या आएगा? 2y plus 3b plus minus 5q plus s. Simple as that. This is known as theorem on equal ratios. अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. प्रैक्टिस सेट 4.4. प्लीज एवरीबडी ओपन टू पेज नंबर 73. लेट अस सी व्हाट आर दे सेइंग. सो व्हाट आर दे सेइंग? देखो x upon 7 is equal to y upon 3 equal to 3x plus 5y upon, this is blank, is equal to 7x minus 9y upon, these both are blank. करेक्ट? तो हमको ये ब्लैंक भरने. तो इधर क्या किया है? 3x plus 5 है, तो इधर क्या करेंगे? 3 into 7 plus 5 into 3.
देखो ना, जिधर जिधर इधर 8 से उधर उधर इधर 7 रहेगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर को वही डिनोमिनेटर को. सो व्हाट विल कम हियर, वी आर सॉल्विंग फॉर दिस नाउ, करेक्ट. तो क्या मिलेगा हमको 3 into 7 plus 5 into 3, that is 21 plus 15, correct, that is 36, correct. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आने वाला है 36. अंडरस्टैंडिंग. नाउ व्हाट अबाउट दिस 7x minus 9y. तो देखो यहाँ पे 7 into न्यूमरेटर minus 9 into ये ऐसा क्या होगा ना, सेम चीज इधर करेंगे. क्या 7 into 7 minus 9 into 3, correct, that is what 49 minus 27, 22. तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमको 20. ओके, अंडरस्टूड. एज सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा इजी है, तुमको आना ही चाहिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says that a upon 3 equal to b upon 4 equal to c upon 7 equal to a minus 2b plus 3c upon equal to 6 minus 8 plus 40. Okay, why I am taking so much time to do these type of questions, क्योंकि कुछ स्कूल्स को इस साल MCQ एग्जाम है एंड दिस कैन कम फॉर द MCQ एग्जाम, इसीलिए मैं कर रहा हूँ. तो देखो ये क्या आएगा a minus 2b plus 3c, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमको 3 minus 2 into 4 plus 3 into 7. देखो ना, ये अपना डिनोमिनेटर के लिए दिस इज द a, दिस इज द b, दिस इज द c. 3 minus 2 into 4 plus 3 into 7, what is it going to come? 3 minus 8 plus 21, that is 24 minus 8, that is 16. तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई 16 in the box, 16. Now here see what they have done. 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 7 का डबल 14 और इधर माइनस प्लस. सो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, जो सी whatever has happened with the denominator will automatically happen with the numerator, whatever has happened to the numerator will automatically happen to the denominator. हमको बस वही करना है. सो here what we have done, डबल ऑफ 3 ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2a. नाउ माइनस साइन है ना, हम भी माइनस डालेंगे. इधर क्या हुआ डबल, तो 2b प्लस साइन 7 का डबल हुआ तो इधर 2c. अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा आसान है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 5m minus n equal to 3m plus 4n, find the values of, उन्होंने कुछ तो दिया हुआ है, करेक्ट. सो हाउ विल वी फाइंड आउट. देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 2 यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि भाई ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का सवाल है. एंड फॉर कंपोनेंट और डिविडेंड इफ यू वांट टू सॉल्व यू वांट m अपॉन n, करेक्ट. विदाउट m अपॉन n हम कुछ भी नहीं कर सकते. m अपॉन n रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट, वी वांट दैट. तो उसके लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, सारे m एक साइड सारे n एक साइड. तो देखो क्या होगा 5m minus 3n equal to 4n plus n. So what do you get? So what do we get? 2m is equal to 5n. So m upon n is equal to 5 upon 2. अभी m upon n मिल गया. अभी नेक्स्ट क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, वो सब क्या है, क्या है वो कंपोनेंट और डिविडेंडो है. किसका कंपोनेंट और डिविडेंडो है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का, करेक्ट. सो वी वांट m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. सो वी विल राइट m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज 25 upon 4. Therefore m square plus n square करेक्ट. क्या इधर लिखेंगे बाय कंपोनेंडो, करेक्ट. सो यू गेट 29 upon 21.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3m plus 4n 3m minus 4n कैसे करेंगे रे बच्चों? देखो m upon n है अपने पास 5/2, therefore 3m upon 4n will be 15/8. क्या किया रे हमने? देखो 3/4 से इसको भी मल्टीप्लाई किया 5/2 को, so you got 3m upon 4m to be 15/8. now 3m plus 4m upon 3m minus 4m is equal to 15 plus 8 upon 15 minus 8. That is what 15 plus 8 is how much? 23 upon 15 minus 8 7. So this is your answer. Okay, next question number 3 is a little bit based upon K method and they are lengthy questions. We will be doing it in the next class. Thank you friends.